हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम मॉड्यूल 4 की केस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 4 हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट का है, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स हमें कवर करने होते हैं। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक ऑडिट एंड पीयर रिव्यू का। तो इस मॉड्यूल का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंटरनल ऑडिट, तो उसके रिलेशन में एक केस स्टडी है जो स्टडी मटेरियल में दी गई है। तो उसी केस स्टडी को हम आज कवर करेंगे। हमारी बुक में इस केस स्टडी का नंबर है 8 और ये इंस्टीट्यूट की केस स्टडी नंबर स्टडी मटेरियल में केस स्टडी नंबर 19 है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। स्टार्ट करते हैं। RS Limited was set up by Raj and Shanti in 1992. Initially, the name of the company was Rajiv Private Limited. Company is currently into the business of aviation. Head office Chennai. Company has been in the same business since its incorporation, but over the year had to shut down its business 3 times due to operational inefficiencies and resultant loss. In the year 2014, company restarted its operation after shutting down third time. Company got funding from foreign investor. Management increased its focus on processes of the company and various checks and control to improve the efficiency of the operations. This gradually resulting in the improving overall business culture of the company, and company started earning profits. In year 2018, company got converted into a public company and got its name changed to RS Limited. After that, company tried to get listed on New York Stock Exchange, but market was not favorable and the company instead got listed in India. पब्लिक कंपनी है, आज की डेट में लिस्टिंग है इंडिया में और प्रॉफिट अर्न करती है। कंपनी अपॉइंटेड ए लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट केबी एंड कंपनी एज इट्स इंटरनल ऑडिटर हु हैव had a specialization in the same sector so that they can help the company to fill the gap in the processes. Some of them are standard operating procedure for logistic process was not defined from the point of vehicle request received from sales marketing department up to the bill verification. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है। व्हीकल रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अप टू द बिल वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड एंड रिमेनिंग पार्ट अगले 3 महीनों में डेवलप हो जाएगा। एसओपी नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा कुछ पार्ट डेवलप हो चुका है और बाकी का 3 महीने में डेवलप हो जाएगा। चलिए आगे। It was noted that during a particular period, cash in hand balance was higher than the actual cash requirement. Ratio of cash expense to closing cash balance during that period ranged from 7 to 84 times. Further, insurance cover was also not taken for cash in hand kept at some location. Management explained that this occurred only during a specified period and insurance coverage plan was in place for the next year. नेक्स्ट ईयर से इंश्योरेंस कवरेज भी ले लेंगे। कैश इन हैंड जरूरत से बहुत ज्यादा कुछ लोकेशंस पर ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम पाया गया। थर्ड, ऑन रिव्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इट वाज ऑब्जर्व्ड सिस्टम वाज नॉट एनेबल्ड टू शो pending delivery of some material while raising a subsequent purchase order, and guidelines were not defined for review of open purchase order and long pending order. Management explained that this was due to lead time, locking in quantity price, lead time to shipment, delay in delivery due to rake unavailability, failure of vendors to supply material as per timelines, and they will explore
how system driven reporting can be done. Fourth, it was observed that credit limit assessment was not being performed for all the customers, which could result in the possibility of credit rating given to customers with weak financial credibility, leading to bad debt or financial losses to the company. Management replied that they started the process of updating the credit limit in the ERP package, which shall be completed in a month time for major customers and for customers wherever a temporary credit limit was defined. This would cover majority of exposure. तो क्रेडिट की बात आ गई कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है क्रेडिट वर्थ के लिए मेजर्स मैनेजमेंट ले रही है. Company also appointed other consultants to improve operations and management functions. During financial year ending 31st March 22, internal auditor raised some observations which were discussed in detail with the management, primarily because the management was not agreeing to some of the points of internal auditor. Subsequently, in the financial year ending 31st March 23, management decided to set up its own in-house internal audit function along with the CA firm KB and Company. इंटरनल ऑडिट ज्वाइंट करना चाह रहे हैं, कुछ पार्ट अपने आप, कुछ एक्सटर्नल KB and Company. Idea was to do the work in-house and over the company, over the period, KB and Company can move out once the management is confident of in-house internal audit function. Considering these facts, provide your suggestions. जनरल केस स्टडी लग रही है और जनरल ही आंसर मिलेंगे. Whether reporting for standard operating procedure for the logistics process as discussed in scenario is required to be reported. दोबारा पढ़ते हैं. Standard operating procedure for logistic process was not defined. कहां से कहां तक का? व्हीकल रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू बिल वेरिफिकेशन, इतने पीरियड के लिए एसओपी नहीं है. मैनेजमेंट ने कहा यह प्रोसेस डेवलपमेंट चल रही है, कुछ पार्ट डेवलप हो गया, बाकी 3 महीने में हो जाएगा. दैट मीन्स पेंडेंसी है अभी, तो रिपोर्ट तो करना चाहिए. देखते हैं क्या ऑप्शन. दिस इज मोर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड हेंस नॉट रेलिवेंट फॉर मैनेजमेंट. गलत, रेलिवेंट है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट खुद इसके ऊपर काम कर रही है. ऑडिटर शुड हाईलाइट एंड रिपोर्ट दिस मैटर इन हिज रिपोर्ट, बिल्कुल करना चाहिए. द मैटर विच इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड. वाई नॉट? अंडर डेवलपमेंट है तो मैं कंसीडर ना करूं, पूरी तरह से डेवलप ना हुआ तो चांसेस है ना. Management needs to demonstrate the development process further and get this issue closed. मैनेजमेंट ने जो उनकी प्लानिंग थी वो ऑलरेडी बता चुकी है. ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो ऑडिटर शुड हाईलाइट दिस पॉइंट एंड स्टेट द फैक्ट्स इन द ऑडिट रिपोर्ट. नेक्स्ट, कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट कैश बैलेंस एंड इंश्योरेंस कवरेज प्लान मैटर इज इन ऑर्डर. मैनेजमेंट का कहना है साल के कुछ ही दिन होता है और इंश्योरेंस कवरेज अगले साल ले लेंगे. क्या ये ऑर्डर में है? नहीं. ऑडिटर को इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए. मैटर शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. मैनेजमेंट नीड टू एक्सप्लेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड इफ दैट इज लो, ऑडिटर शुड इग्नोर दिस. 7 to 84 टाइम्स लिखा हुआ था. Cash balance should not be looked at by the internal auditor as this is more relevant. Why not? मैं क्यों ना देखूं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू मेरी ड्यूटी बनती है इंटरनल ऑडिटर की. इंटरनल ऑडिटर शुड ओनली रिपोर्ट अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज. नो. प्लस जो कैश एक्सेस में रखा गया है कुछ लोकेशंस पर, वो भी रिपोर्टिंग करूंगा. मैटर शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. मैंने कहा जनरल क्वेश्चन मिलने, जनरल आंसर, क्योंकि केस स्टडी ही जनरल थी. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट
regarding pending delivery status to be shown in the system and guidelines was due to lead time, locking in quantity price, lead time to shipment, बड़े सारे कारण बताए थे मैनेजमेंट ने. And they will explore how system driven reporting can be done. Is viable. वाइबल है भी, तब भी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिपोर्टिंग तो आएगी. दिस वाज एन ऑपरेशनल चैलेंज एंड हेंस आउट ऑफ प्रीव्यू. नो, ऑपरेशंस का रिव्यू इंटरनल ऑडिट का एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है. रिव्यू ऑफ द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. This related to some system constraint may be ignored. System constraint है, कोई बात नहीं, तो मेरा काम ही क्या है, review of systems and procedures and to highlight the deficiencies in the system and to bring it to the notice of the management so that corrective action can be taken. Internal auditor needs to highlight this. Management should draw a proper plan to take care of this. In any case, there does not appear to be any financial impact due to this, and hence the same should be ignored. Ignore कैसे कर दूं? Whether internal auditor is required to report regarding credit limit assessment, बिल्कुल. कलेक्शन की इवैल्यूएशन भी तो हमारे काम में आएगी. इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी बहुत, उसका स्कोप बहुत वाइड है. Since the management has already taken remedial action, but अभी in force नहीं है पूरा, internal auditor should drop नहीं. Since this matter related to financial, this should be covered by statutory auditor. कर लेगा वो भी, but why not me? Financial भी मैं भी तो चेक करता हूं. Management said that statutory auditor have also raised this point, and hence internal auditor should drop this. No, I will not drop it. I will highlight it into my audit report. Internal auditor should report this irrespective of the fact whether statutory auditor covered this or not. Yes, this is the correct one. Management plan to phase out the CA firm by building up an in-house internal audit team has been questioned by the statutory auditor, saying this is not acceptable. Why not? इंटरनल ऑडिटर को हटाकर कंपनी अपना इन हाउस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना चाहती है, इन हाउस करना चाहती है इसको, इट्स ओके. अभी एग्जिस्टिंग ऑडिटर इस चीज को मना नहीं कर सकता. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर करेक्ट नहीं. स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड ऑब्जर्व दिस फॉर ए पीरियड एंड इफ, अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कहा, एग्जिस्टिंग इंटरनल ऑडिटर नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इंटरनल ऑडिटर बाहर का होना चाहिए. नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप गलत है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड ऑब्जर्व दिस फॉर ए पीरियड एंड इफ दैट इज वर्किंग फाइन, दे शुड हैव नो कंसर्न रिगार्डिंग दिस. ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल ठीक है. और उसके बाद यदि ये इंटरनल ऑडिट ठीक ना हो, कारो के पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 में रिपोर्टिंग कर दो. ठीक है, पैरा 3 क्लॉज 14 में रिपोर्टिंग कर दो यदि आपको लगता है कि ठीक नहीं है. मैनेजमेंट हैज डिस्क्रिशन रिगार्डिंग दिस, हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर नॉट करेक्ट. ये भी ठीक है. Management should take approval from relevant authority from MCA, like MCA. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अब मेरे पास दो ऑप्शन है. Statutory auditor should observe this for a period and if that is working fine, then they should have no concern regarding this. Concern है भी तो आप अपनी कारों की रिपोर्टिंग करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप इन हाउस नहीं बना सकते. C is the best option इन चारों ऑप्शंस के अंदर. चलिए,
ये थी हमारी केस स्टडी ऑन चैप्टर नंबर 13 इंटरनल ऑडिट पर। एंड आई थिंक मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट पर तो कोई फुल फ्लेज केस स्टडी नहीं है। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ पर कोई फुल फ्लेज केस स्टडी की सिर्फ उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड हो वो तो नहीं है। हाँ, टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन बहुत सारी जगह पर अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग केस स्टडीज में यूज्ड है। ड्यू डिलिजेंस की केस स्टडी है 2-3, फिर पीयर रिव्यू की भी और क्वालिटी रिव्यू की भी एक एक केस स्टडी है। तो इस मॉड्यूल में अराउंड 5 to 6 केस स्टडीज हैं जो हमने कवर अप करनी है। इंटरनल ऑडिट के चैप्टर की हो गई, मैनेजमेंट ऑडिट की नहीं है, एंड ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस की अलग से नहीं है, ड्यू डिलिजेंस के चैप्टर में मिलेंगी, फिर पीयर रिव्यू के चैप्टर में मिलेंगी। तो इस सेशन को, छोटा सा सेशन था हमारा, एक ही केस स्टडी थी, यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो केस स्टडीज का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।